جنوبی پنجاب میں سال کے آخری روز سیاہ بادل برس پڑے۔ بوندا باندی سے نہ صرف موسم سہانا بلکہ سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ ملتان، بہاولپور، مبارک پور، لیاقت پور، لیا، میاں والی، روجان، کوٹ مٹھن اور گرد و نواح میں بھی ابر رحمت نے موسم کو دلفریب بنا دیا۔ دوسری جانب بارش سے خود سردی میں اضافے کے ساتھ دیگر معاملات زندگی متاثر۔ متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا، جبکہ ملتان میں بارش کسانوں کے لیے ابر رحمت بن گئی۔ بارش سے گندم کی فصل کو فائدہ ہوگا، زمین میں نمی کی کمی دور ہوگی اور گندم کی فصل میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، جنوبی پنجاب میں سال کے آخری روز سیاہ بادل برس پڑے۔ رحیم یار خان میں گزشتہ رات بارش کسانوں اور زمینداروں کے لیے ابر رحمت بن گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈاکٹر مسعود سلیم کہتے ہیں شگوفہ سازی کے مرحلے کی فصل گندم میں پانی کی کمی پوری ہو گئی۔ ضلع میں 8,34,000 ایکڑ پر زیر کاشت گندم کی فصل کو حالیہ بارش سے براہ راست فائدہ پہنچا۔ رحیم یار خان میں گزشتہ شب ہونے والی بارش کسانوں اور ذمہ داروں کے لیے کسی ابر رحمت سے کم ثابت نہیں ہوئی۔ طویل خشک موسم کے بعد برسنے والی اس نعمت خداوندی نے بالخصوص گندم کی فصل کو نئی زندگی عطا کر دی، جو اس وقت اپنے نہایت اہم شگوفہ سازی کے مرحلے میں داخل ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر مسعود سلیم کے مطابق ضلع رحیم یار خان میں اس وقت 8,34,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل زیر کاشت ہے، جسے حالیہ بارش سے براہ راست فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں آخری بار 6 اکتوبر کو بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد طویل وقفے سے زمین میں نمی کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر مسعود سلیم کا مزید کہنا تھا کہ آج صبح 5 سے 7 بجے کے دوران 1 سے 4 ملی میٹر تک بارش ہوئی، جو گندم کی موجودہ حالت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بارش کے حوالے سے اللہ پاک کا شکر ہے جی، یہ سردیوں کی پہلی بارش ہے اور 6 اکتوبر کو لاسٹ بارش ہوئی تھی رحیم یار خان میں۔ اس کے بعد آج 31 دسمبر سال کا آخری دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ بارش سے نہ صرف پانی کی جو کمی پوری ہوگی بلکہ اس کے ساتھ جو ہے بارش کے ساتھ جو ہوا میں موجود نائٹروجن ہے وہ بھی پودے حاصل کر سکیں گے۔ موسم کی موجودہ صورتحال اور بارش کے مثبت اثرات کو دیکھتے ہوئے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ رواں سال گندم کی فی ایکڑ پیداوار نہایت بہتر حاصل ہوگی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ بہاولپور کی پھل اور سبزی منڈی ہلکی بارش کے بعد دلدل منڈی بن گئی۔ سبزی منڈی کو تزئین و آرائش کے بعد وزیر اعلیٰ کاشتکار بازار کا درجہ دیا گیا تھا۔ پانی اور کیچڑ نے پھڑیوں کی سبزیاں اور پھل خراب ہونے لگے۔ بہاولپور سبزی منڈی کو تزئین و آرائش کے بعد وزیر اعلیٰ کاشتکار بازار کا درجہ دیا گیا، مگر پہلی بارش کے بعد ہی سبزی منڈی کا حلیہ بگڑ گیا۔ بارشی پانی اور کیچڑ نے منڈی کا حشر خراب کر دیا۔ پھڑیوں کی سبزیاں، پھل پانی اور کیچڑ میں خراب ہونے لگے ہیں۔ بعض پھڑیوں نے عارضی طور پر مٹی لگا کر پانی سبزیوں میں داخل ہونے سے روک لیا۔ تاہم پھڑیوں کا کہنا تھا کہ مزید بارش سے مارکیٹ کے نشیبی علاقے میں دکانداروں کی سبزیاں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ کاروبار سارا مندہ چل رہا ہے، یہ صفائی بھی نہیں ہے اور کچھ ادھر ٹینشن دی ہوئی ہے، لوگوں نے پریشانی کی ہوئی ہمیں، بھئی کوئی قسم کی یعنی کہ ادھر سہولت نہیں ہے ہمیں۔ سبزی منڈی کی خطیر رقم سے تزئین و آرائش دسمبر میں ہی مکمل ہوئی تھی۔ منڈی کا اپنا سیوریج ڈسپوزل سسٹم نہ ہونے کے باعث بارشی پانی کی نکاسی کا نظام موجود نہیں۔ پھڑیوں کے مطابق ریٹ گرنے سے پہلے ہی مندہ ہے۔ پیرا فورس کے جرمانوں کے بعد رہی کسر بارش نے پوری کر دی۔ بارش کے دنوں میں کیچڑ کے باعث منڈی میں خریدار آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے برا حال ہوگا منڈی کا جی، ہاں اور کیا ہوگا، سارے چکڑ ہے، سارا عوام کا برا حال ہے۔ بہت جو ہے کام خراب ہے، ادھر نقصان تو ہوگا ان کا۔ کہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے مال لے جاتے ہیں، آگے پیرا والے جو ہمارے کو لگانے نہیں دیتے، ہم اس سے زیادہ پریشانی ہے۔ ایسی گورنمنٹ نے کون سی حکومت نے نکالی ہے جو یہ بہت مشکل ہوگی ہمارے لیے۔ بارش کے باعث منڈی میں مال کی ترسیل بھی متاثر ہوئی اور کاروبار مکمل ٹھپ ہو گیا۔ تاجروں نے مارکیٹ کمیٹی سے پانی کی نکاسی کا نظام بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ سال 2026 کی آمد کوٹھدو کی شہریوں کی جانب سے نئے سال کا آغاز پھولوں سے کیا جا رہا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں شہری مختلف قسم کے گلدستے اور ہار بنوا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے شفقت ملانہ سے۔ آج نئے سال کی آمد جو ہے شروع ہو چکی ہے، جیسے رات ڈھلی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کی دکانوں پہ بھی عوام کا کافی زیادہ رش لگ چکا ہے۔ لوگ نئے سال کا آغاز اپنے پیاروں کو پھول دے کے کر رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ شہری اور دکاندار بھی موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا نئے سال کی آمد کے سلسلے میں کیا کیا آرڈر ہیں، کیا کیا پھول ہیں؟ کیا ہمارے پاس جو ہے نئے سال کے آرڈر جو آئے ہوئے ہیں نا، لوگوں نے یعنی کہ پھولوں کے آرڈر دیے ہوئے ہیں، ہمیں پیسوں والے بکوں کے بھی آرڈر دیے ہوئے ہیں۔ مزید یعنی کہ ہم بنا رہے ہیں لوگوں کو آرڈر کے حساب سے، کافی بھائی ہمیں آرڈر دے چکے ہیں۔
ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि लोग फूलों से जो है नए साल का आगाज करें। मजीद यहाँ पे शहरी भी आए हुए हैं। सर आप बताइएगा, आप यहाँ पे क्या बनवाया आपने नए साल के लिए, आपकी क्या तवक्कुआत है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, हमने बनवाए बुक्के बनवाया बाकिर भाई से। तो जो नए साल का आगाज है हम फूलों से करना चाहते हैं, खुशियों से। हमारी बस यही तो है कि आने वाले साल में सबकी खुशियाँ हो, ठीक है ना, ये जो महंगाई है कम हो। इसके अलावा सब जो मुसलमान बहन भाई हैं सब खुश रहें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, ये टैक्स वगैरह ना हो, हुकूमत भी हमें रिलीफ दे। हम काफ़ी परेशान है, कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि नए साल की खुशी में कोई पैकेज दे, हमें कोई रिलीफ दे, ताकि हम भी नए साल का आगाज अच्छी खुशियों से कर सकें। ये दुकानदार और शहरी हमारे साथ मौजूद थे। शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी, इन्होंने हुकूमत वक्त से भी अच्छी तवक्कुआत का इज़हार किया, टैक्सेस कम हो, महंगाई कम हो, वो उम्मत मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। फूलों से ये जो है अपने प्यारों को फूल गिफ्ट करके जो नए साल 2025 इख्तिताम होने में कुछ घंटे बाकी, बहावलनगर के शहरी साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। बारबेक्यू पॉइंट्स पर शहरियों का रश। मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जब बिल्कुल साल 2025 के इख्तिताम होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और कुछ घंटों के बाद साल 2026 का आगाज होने जा रहा है, तो बहावलनगर में 2025 का जो आखिरी दिन है वो आज स्याह बादलों की नजर हो गया। शहरी जो 2025 के आखिरी दिन का जो सूरज है वो गुरूब होते भी नहीं देख सके, क्योंकि आज सारा दिन बादल थे। हल्की हल्की बारिश हुई है जिसकी वजह से जो मौसम जो बड़ा खुशगवार है। तो शहरी जो है वो अब नए साल को खुशामदीद करने के लिए पहुंचे हैं बारबेक्यू पॉइंट पर। उनसे बात कर लें। आप बताइए कि जी आज तो सारा दिन हल्की हल्की बारिश हुई है, भावनगर का मौसम बहुत अच्छा रहा है और साल 2025 इख्तिताम पजीर हो जाना है, क्या कहते हैं? जी आज माशाल्लाह मौसम बड़ा खुशगवार रहा है, बारिश हुई है और मौसम जो है वो आज बारबेक्यू का है, तो बच्चों के लिए हम खाना वगैरह लेने आए हुए हैं। बड़ा यानी आज जो है सूर्य गुरूब नहीं देख सके हम, लेकिन हो गया है और नया साल माशाल्लाह शुरू हो गया। आप सबको मुबारक हो। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाला जो साल है हमारे लिए जो खैरियत का वक्त लेके आए, हमारी यही दुआ है और इंशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए अच्छे काम करें और हमें रिलीफ दिया जाए अच्छे से अच्छा इस साल के लिए। आज की जो रात है, खास तौर पर जब 12 बजेंगे उसके बाद नए साल का आगाज होगा, तो कोई खास प्लान किया है फैमिली? जी खास प्लान यही है माशाल्लाह। अभी मैंने कुछ ही रिसेंटली देखा है, काफी लोग केक वगैरह लेके जा रहे हैं, मैंने भी बेकरी से कुछ सामान लिया बच्चों के लिए, तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आखिरी साल का जो दिन है वो मनाएंगे इंशाल्लाह बच्चों के साथ। शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो अपनी फैमिली के साथ आज साल जो 2026 का आगाज होने जा रहा है, तो अपनी फैमिली के साथ जो है वो गुजारेंगे। जी शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब का कमेटी बराए अमन ओमान का 46वां इजलास सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की जेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, कानून नाफिज करने वाले अदारों की इजलास को ब्रीफिंग। इजलास में सूबा भर के अमन ओमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में न्यू ईयर नाइट पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अमूर पर फैसले किए गए। न्यू ईयर नाइट पर वनवीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास में मियांवाली और डीजी खान में रेंजर्स की तैनाती में तौसीक कर दी गई। इजलास में सूबा के बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी पर सख्त इज़हार तशवीश। अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए सूबा भर में कंबाइन ऑपरेशन और होटल आई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कमीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफी का इज़हार ख्याल। कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सूबा भर में क्लाइंट फ्लाइंग एसोसिएशन रेगुलाइजेशन बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सूबाई कमीना ने कानून के मुताबिक सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महमूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। गैर कानूनी पतंगबाजी इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है। इंतजामिया कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इजलास में पंजाब भर से कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुल्तान में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की तरफ अहम पेशरफ्त। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है। मनसूबे के तहत शहर भर में जदीद कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। इन कैमरों की मदद से जहां क्राइम की रोकथाम मुमकिन हुई है, वहीं ट्रैफिक निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहरी सिक्योरिटी के हवाले से एक मौसर निज़ाम। सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत मुल्तान शहर के हसास और अहम मकामात पर 400 जदीद सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये कैमरे न सिर्फ जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं, बल्कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी निशानदेही में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 400 कैमरे
इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्राइम पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है, तो डेली जो हम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्राइम को भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से क्राइम के जो फिगर्स हैं हमारे वो डाउन हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की बदौलत शहर में डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों पर मुलविस गैंग की निशानदेही की गई, जिन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया गया। सेफ सिटी कंट्रोल रूम में तरबियत याफ्ता अमला हर लम्हा शहर की निगरानी कर रहा है, जहाँ से पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये निज़ाम मुल्तान को महफूज शहर बनाने की जानिब एक मजबूत कदम है। यहाँ से ट्रेसिंग हम कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं और जितने भी जो लोग वायलेट करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कैमरे की आंख से तो उन्हें देखा जा रहा है और उनको ट्रेस करना और एविडेंस कलेक्शन में बड़ी आसानी मिल रही है। और इवन हमारी जो आईओज़ के पास जो जितने भी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं उसमें उन्हें बड़ी सहूलत इसमें मिल रही है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस रिकॉर्डिंग जो हो रही है उससे वो बड़ी उनको हेल्पफुल है। शहरियों का मानना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक सेफ सिटी मनसूबा मुस्तकबिल में मजीद जदीद सहूलियात के साथ वसत इख्तियार करेगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, सरगोदा में रवा साल नवाज शरीफ फ्लाईओवर, इलेक्ट्रिक बस और सेफ सिटी जैसे अहम मनसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर गए। सीवरेज और साफ पानी जैसे बुनियादी मसाइल से मुतालिक मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। तरक्याती पैकेज के तहत शहर के मेगा प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने इस रिपोर्ट में। सरगोदा के लिए रवा साल तरक्याती पैकेज के तहत मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनका मकसद शहर के बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट निज़ाम और अवामी सहूलतों को बेहतर बनाना था। सरगोदा का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नवाज शरीफ फ्लाईओवर आवाम के लिए खोल दिया गया है। 1.3 किलोमीटर तवील मंसूबा 2.2 अरब की लागत 8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबे की तकमील से शहर के ट्रैफिक निजाम में नुमाया बेहतरी आई है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी शहरियों को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। वजीर आला ने इब्तदाई तौर पर 33 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया, जबकि मजीद 60 बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर फ्राहम की गई हैं। जदीद बसें भलवाल, सलांवाली, कोट मोमिन और साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में चल रही हैं। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी तकरीबन ऑपरेशनल हो चुका है। निगरानी के जदीद निजाम से जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे को मुस्तकबिल में खुशाब और भक्कर तक तोसी देने की मंसूबा बंदी है। इधर शहर के लिए रवा साल ऐलान किया गया सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस मंसूबे पर 14 से 14.5 अरब की लागत से पुरानी लाइनें तब्दील, नए डिस्पोजल सिस्टम और स्टोरेज टैंक्स की तामीर होंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबा 1.5 साल से 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नहरी पानी के बहाव में इजाफा और 2 जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कयाम के मंसूबे ताहाल मंसूबाबंदी के मरहले में हैं। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। तरक्याती पैकेज के तहत सड़कों, इंटरचेंजेस और क्वीन चौक से फैसलाबाद बाईपास तक सड़क समेत मुतअद्दिद स्कीमें भी मंजूर की गई थीं। इसके अलावा 54 करोड़ के छोटे तरक्याती मंसूबे में से कई जारी हैं, जबकि बाज़ तकमील के इब्तदाई मराहिल में हैं। शहरियों का कहना है, अगर जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाए तो सरगोदा के देरीना मसाइल में वाजिया कमी आ सकती है। बसूरत दीगर ये वादे भी फाइलों तक महदूद रहने का खदशा है। जिला डेरा गाजी खान में मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी मुतादी तरक्याती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कैंसर अस्पताल और एयरपोर्ट जैसे मंसूबों पर ऐलानात के बावजूद काम शुरू न हो सका। इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में 300 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नई ओपीडी का 90% से जायद काम मुकम्मल हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट पर 6 अरब से जायद लागत आएगी। इसी तरह ये 3 बच्चों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम की तोसी का काम भी तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिस पर 6 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर के देरीना सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वासा का कयाम भी अमल में लाया गया। वासा की ज़ेर निगरानी 12 अरब रुपए के मंसूबे पर काम जारी है। वासा में शाह सिकंदर रोड, दस्ती पुल तक कॉलेज
चौक, हस्पताल चौक तक कॉलेज चौक, कंगन रोड, मुशर्रफ चौक तक हस्पताल चौक, मरकजी ईदगाह रोड, मुशर्रफ चौक तक कमेटी गोलाई और बोदला कॉलोनी में नई सीवरेज लाइनें डाल दी हैं। पुरानी लाइनों की मरम्मत का काम भी जारी है। इन मंसूबों से शहरियों को सीवरेज मसाइल से मुस्तकिल निजात मिलने की तवक्को है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में नस्ब जदीद कैमरे मई 2025 से फंक्शनल हैं। 25 करोड़ रुपए की लागत से टोटल 176 कैमरे नस्ब किए। बैनुल इजला तमाम अहम बैनुल सूबाई बैनुल इजला चेक पोस्टों और शहर के तमाम अहम हिस्सों को मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 30 बसें चलाई गई, जिनमें से 24 बसें डेरा गाजी खान जबकि 6 बसें तोनसा में फराहम की गई और दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तमाम बसें फाल हैं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें डेरा गाजी खान शहर के साथ कोट चुठा, चोटी जेरी, शाह सदरुद्दीन और सखी सरवर के रूट्स पर रवा दवा है। दूसरी जानिब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान को कैंसर अस्पताल का तोहफा देने और एयरपोर्ट को फाल करने का वादा किया था, जो अभी तक वफा नहीं हो सका। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। आपको बताएं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर अब है नया बहावलपुर। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पेलिकन मॉल में तकरीब सज गई। तकरीब के लिए पेलिकन मॉल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अपडेट करें आपको बहावलपुर से। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर अब है नया बहावलपुर। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पेलिकन मॉल में तकरीब सज गई। तकरीब के लिए पेलिकन मॉल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अपडेट करेंगे आपका बहावलपुर से। बहावलपुर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर अब है नया बहावलपुर। मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है रजा मलिक ने। रजा मलिक बताएगा। जी देखिए, बिल्कुल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर है अब नया बहावलपुर, और इस नए बहावलपुर में नए साल को खुशामदीद करने के लिए और 2025 को अलविदा कहने के लिए बहावलपुर की सबसे बड़ी तकरीब के लिए जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पेलिकन मॉल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रंगो नूर का सैलाब है और कुछ देर में जो है बाकायदा डीजी नाइट और उसके साथ साथ एक ग्रैंड फायर वर्क्स जो है वो नए साल को खुशामदीद कहने के लिए जो है वो किया जाएगा। इस इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल है। पेलिकन मॉल हमारे अकब में नजर आ रहा है जिसको दुल्हन की तरफ सजाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं महद सबसे बड़ी तकरीब होने जा रही है और हमेशा की तरह DHA पेलिकन मॉल के हर दफा नई से नई चीज जो है वो दी जाए। जी, DHA बहावलपुर और पेलिकन मॉल का ये विजन है कि हम बहावलपुर के लिए सबसे बेहतर एंटरटेनमेंट, सबसे बेहतर फैसिलिटी ला सकें, एक्सपीरियंसेस ला सकें, लाइफस्टाइल ला सकें। इवेंट हम लोग हर साल करवाते हैं, तो ये डीजे नाइट और फायर वर्क्स का इवेंट होने जा रहा है यहाँ पर। और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक एनर्जी है, ताकि बहावलपुर हम लोगों के साथ मिल के जो एक नया साल होता है, ये एक नई शुरुआत होती है, खुशियाँ होती हैं, हम बहावलपुर को यूनाइट कर इस नए साल की शुरुआत कर सकें। अच्छा महद, जो है हाई राइज बिल्डिंग होगी, क्या होगा पेलिकन मॉल में, कितने फ्लोर्स हैं और क्या क्या बनने जा रहा है? जी, यहाँ पे स्विस इंटरनेशनल होटल बनने जा रहे हैं, एक 5 स्टार होटल होगा, साथ में यहाँ पे पेलिकन मॉल होगा जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मॉल देखते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, सिनेमाज होते हैं, अंदर प्ले लैंड्स होते हैं, वो सारी फैसिलिटी दी जाएगी। ऊपर इन्फिनिटी पूल है स्विस इंटरनेशनल के साथ, जिसके साथ इन्फिनिटी व्यू मिलता है। तो ये बहावलपुर के लिए बड़ी ग्रेट एडिशन है। जी बिल्कुल, और इस वक्त जो है मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सके तो भरपूर तरीके से जो है वो पेलिकन मॉल को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है और जहां नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए कुछ देर में शानदार किस्म की ग्रैंड डीजे नाइट और ग्रैंड फायरवर्क्स का जो है वो इनेकाद किया जाएगा और जो है तमाम अहले बहावलपुर जो है DHA में मिलकर नए साल को जो है वो खुश आमदीद करेंगे और 2025 को अलविदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक तफसीलन अपडेट करने के लिए। मुल्तान में न्यू ईयर नाइट की तैयारियां अरूज पर। साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। शहरी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा बारबेक्यू पॉइंट्स पर पहुंच गए। आपको अपडेट करेंगे, साल नौ की आमद है। मुल्तान में न्यू ईयर नाइट की तैयारियां अरूज पर। साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। आज बिल्कुल न्यू ईयर नाइट को जो है वो मुल्तान में भी आज सेलिब्रेट जो है वो कर रहे हैं और जिस तरह मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पर बारबेक्यू जो है वो यहाँ पर मुल्तानी जो है वो आज इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम एक बारबेक्यू पॉइंट पर जो है वो मौजूद है जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उस वक्त साथ साथ रिमझिम भी हो रही है और न्यू ईयर नाइट का जो मजा है वो भी साथ साथ जो है वो दुबारा हो चुका है। तो शहरी जो है वो खासकर इस बारबेक्यू को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर शहरियों की जानिब से जो है वो केक भी जो है वो यहाँ पर काटा जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है वो हम
हम पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो देखते हैं कि आज न्यू ईयर का केक मेरा कैमरामैन इरफान असलम आपको दिखा सके, तो यहाँ पर जो है वो न्यू ईयर का केक भी जो है वो आज जो है वो यहाँ पर काटा जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है वो इनकी जानिब से न्यू ईयर का जो केक है वो भी अब रोही के हमरा जो है वो काटा जा रहा है, और साथ साथ पाकिस्तान की जो तरक्की है उसके लिए भी जो है वो यहाँ पर दुआ भी जो है वो की जा रही है, और एक दूसरे को जो केक है वो भी यहाँ पर हमें खिलाते जो है वो नजर आ रहे हैं। तो खुद भी जो है वो खाया जा रहा है और हमें भी जो है वो खिलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं साल 2025 के हवाले से, कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे अहले इस्लाम को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सन 2026 सब मुसलमानों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा अल्लाह के हुक्म से। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से अपनी टीम के साथ मिलकर सन 2026 के लिए केक काटा जी, कराची बारबेक्यू एंड फिश हाउस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं रोई चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने स्पेशली तौर पर हमारे लिए इंशाल्लाह ताला इंतजाम कराया, और बहुत बहुत मेहरबानी, और सारे दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जी। जो है वो यहाँ पर आज मौसम भी खुशगवार है और फिश खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं साल 2025 के? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जो इन्होंने तकरीब रखी है गोंदल साहब ने, हमें बहुत मज़ा आया, और आप भी आए हैं, इस तकरीब को खुशगवार बना दिया है माशाल्लाह। और ठीक है, तकरीब भी जो है वो खुशगवार होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, साल 2025 कैसा रहा और 26 के लिए क्या एक्सपेक्टेशन? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई गोंदल के पास हम आते रहते हैं, इनका जायका और बहुत अच्छा, और 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह जैसे 25 गुजरा है, इंशाल्लाह 26 भी हमारा अल्लाह पाक जो है वो अच्छे खैर तफरीह से गुजारे, और हमारी यही दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारा चैनल तरक्की करे, खासतौर से हमारा मुल्तान तरक्की करे। ठीक है, अपने शहर के लिए भी जो है वो दुआ की जा रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस हैं वो भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और यही दुआ जो है वो की जा रही है कि साल 2026 भी जो है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल जो है वो साबित होगा। तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो फिश को एंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अपडेट करने के लिए। साल 2025 के आखिरी रोज़ वासा मुल्तान ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में 4,19,509 पानी और सीवरेज के कनेक्शन किए गए। साल 2025 में वासा की रिकवरी शरह में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। बिल्कुल, साल 2025 इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, और ये साल वासा की कारकर्दगी के हवाले से कैसा रहा, रोही की जानिब से वासा मुल्तान की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो हासिल कर ली गई है। कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 4 लाख से ज़ायद जो कनेक्शंस थे इस पूरे साल के दौरान जो थे वो किए गए। और इसके साथ साथ अगर रिकवरी के हवाले से बात कर लिए तो हमारे साथ बात करने के लिए एमडी वासा फैसल शौकत साहब मौजूद है, इन्हीं से हम जानते हैं। वासा मुल्तान में वाटर सप्लाई सीवरेज तकरीबन 4,19,000 कनेक्शंस हैं, और इसमें तकरीबन 20,000 से ज़ायद 14,000 तकरीबन शिकायत ओवर बिलिंग के मुतल्लिक आई, वो हमने उनको एड्रेस किया। 20,000 के करीब हमारे सीवरेज के मुतल्लिक शिकायत आई पूरे साल के अंदर, उनको एड्रेस किया गया, और तकरीबन हमारी 3,000 के करीब वाटर सप्लाई के मुतल्लिक शिकायत आई जिनको एड्रेस किया गया। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोगों का रुझान भी है, वो अपने सर्विसेज की बेहतरी के लिए ऑफिस को अप्रोच भी कर रहे हैं और उनको एड्रेस भी किया जा रहा है। रिकवरी में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, बिल्कुल हुई है। हम अपने टारगेट के तकरीबन 70% अबव जा रहे हैं, पर वो अभी भी सफिशेंट नहीं है। ये ज़रूर है, पिछला पूरा साल वासा मुल्तान ने विदाउट एनी गवर्नमेंट सब्सिडी अपने बजट को मेंटेन किया है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वासा की जानिब से एक रिकवरी का मैकेनिज्म उससे बेहतर किया गया और रिकवरी के अहदाफ हासिल किए गए, और जो वासा के इंटरनल जो मैपको के साथ तनाज़ात देखने में आते थे उनके हवाले से अच्छी खबर यह है कि वासा की जानिब से मैपको को बड़ी अदायगियाँ की गई, और ये तमाम तर जो मामलात जो